So, hello and welcome everyone. This is me, Naneshwari Dongre. Today we are going to learn something about biology. And in biology, we are going to learn about molecular basis of inheritance. Let's see. Molecular basis of inheritance. What is inheritance? Inheritance means study of heredity. Got it? And what is with heredity? Transfer of genetic character from one generation to another. Transfer of genetic character from one generation to another. Got it? Yes. This is a human body. In human body there are multiple cells. And there is nucleus, genetic material and chromosome. So let's see how chromosome forms, and in chromosome which things are present. Let's see. This is the structure of chromosome, like spring, and this is the DNA. This is a double helical DNA. Can you see this? DNA is attached to a chromosome. How I have shown here, like this. And in DNA there is a presence of gene. What? There is a presence of gene. You can see there I have given 4 lines there from 4 different markers. Let this see. This is called a gene. A particular part I have taken from a DNA and I have mentioned this part a gene as a gene. What is DNA? DNA is nucleic acid. What is DNA? DNA is nucleic acid. DNA is nucleic acid which stores every information of body. DNA क्या करता है? वो अपने हमारे बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. हमने क्या खाया, कब खाया, क्या पिया, कब पिया, everything. Got it? Yes. What is full form of DNA and RNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. What? DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. Just remove deoxy from when you are going to add RNA. Just remove deoxy and just add ribonucleic acid. Got it? Yes. Let's go further. In 1928, फेडरिक ग्रिफिथ ये एग्जाम में अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन आते हैं. मीन्स और फ्रेडरिक ग्रिफिथ के नाम से, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन दिस थियरी और एक्सपेरिमेंट. व्हाट ग्रिफिथ हैज गिवन टू अस? Griffith has shown a strain. Griffith has shown 2 types of strain. Which are they? First is R strain and second is S strain. First is R strain and second is S strain. Got it? In R strain, Frederick Griffith has shown us rough means rough area, non-virulent and non-pathogenic. What they have shown in R strain, they have shown rough. R से rough ध्यान में रखो guys. R is for rough, non-pathogenic, non-virulent. Got it? And second is S strain. What they have shown in S strain, they have shown here smooth, virulent and pathogenic. Got it? अब ऐसे ध्यान में रखो, R से rough surface और S से smooth. और जब रफ आएगा तब सब नॉन आएगा, नॉन पैथोजेनिक, नॉन वैरुलेंट. एंड जब स्मूथ आएगा तब वैरुलेंट एंड पैथोजेनिक. गॉट इट? यस. ग्रिफिथ हैज गिवन अस 2 strain which is R and S, and we are going to learn further about that both strain. Okay, what Griffith has taken? Griffith has taken first R strain and 1 mouse. ग्रिफिथ ने पहले क्या लिया था? R strain लिया और एक माउस लिया, एक जिंदा माउस लिया, मतलब चूहा लिया. उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया. उस चूहे के ऊपर उसने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया. जो
आर स्ट्रैंड है वो उसने उस माउस के अंदर डाला और देखा कुछ देर बाद वो माउस जिंदा रहता है या मर जाता है। तो उसने क्या देखा कि वो जो माउस है वो अलाइव है, वो जिंदा रह रहा है। ओके, गॉट इट? And after that, Griffith has taken S strand. First, Griffith has taken R strand. Now, Griffith has taken S strand. And again, Griffith has copied this process. उसने क्या किया? S strand लिया और एक फिर से एक माउस लिया, दूसरा वाला लिया, not same one. And उसमें उसके अंदर उसने S strand डाला और अभी उसने कुछ देर बाद देखा तो वो जो माउस है वो मर गया, वो डेड हो गया। गॉट इट? एस में आर में क्या हुआ है? आर में वो माउस जिंदा रह रहा है और एस फ्रेंड में वो माउस क्या कर रहा है? वो माउस जिंदा नहीं रह रहा, मतलब मर गया वो माउस। एंड आफ्टर दैट ग्रिफिथ हैज टेकन हिट किल एंड एस स्ट्रेंथ, दिस बोथ टुगेदर, हिट किल और एस स्ट्रेंथ, दिस बोथ थिंग्स हैज टेकन ग्रिफिथ टुगेदर एंड इन माउस दे हैव पुट दिस थिंग। एक माउस लिया, उसके अंदर ये चीज़ डाली, फिर उन्होंने देखा कि वो माउस जिंदा रह रहा है या मर रहा है। तो वो माउस जिंदा रह रहा है। पहले केस में हमने देखा कि अगर हम लोग एस स्ट्रेन ले रहे तो माउस क्या कर रहा है? माउस मर रहा है। और बाद में उसने क्या किया? हिट किल प्लस एस स्ट्रेन लिया तो वो माउस जिंदा रह रहा है। और फोर्थ टाइम में उसने कैसे किया? हिट किल लिया, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन लिया, तो वो माउस क्या कर रहा है? वो माउस मर गया, माउस की डेथ हो गई, माउस की डेथ हो गई। कैसे? अब अभी आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो एस स्ट्रेन प्लस हिट किल लिया तभी तो जिंदा था माउस, फिर एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को मिलाया तो माउस मर कैसे गया? हीट किल और एस्ट्रेन जब मिक्स किया तो एस्ट्रेन के जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, मतलब कुछ अनवांटेड बैक्टीरियाज थे, वो हीट किल के वजह से ख़त्म हो गए, इसलिए वो माउस जिंदा रहा। और जब आर स्ट्रेन प्लस हीट किल एंड एस्ट्रेन मिलाया तो वो बैक्टीरिया जो एसके थे वो उसमें थोड़े बैक्टीरियाज रह गए, पूरे के पूरे डेड नहीं हो गए वो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, इसलिए वो माउस के ऊपर इफेक्ट हो गया उस बैक्टीरिया का और वो बैक्टीरिया मर गया। गॉट इट? यस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, हार्चीज केस एक्सपेरिमेंट। व्हाट हार्चीज चेस has given us? Harchis Chase has given us that Harchis Chase tell us that bacteriophage kills bacteria. उन्होंने क्या कहा? बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब एक दुनिया में ऐसी भी चीज़ है जो बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया तो हम सबको किल करता है, ऑब्वियसली हम सबको पता है, पर एक ऐसी भी चीज़ है जो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करती है और उससे भी किल करती है, जो कि है बैक्टीरियोफेज। And Charles has given us two substance, alpha substance, which are the protein labeled S35. What it is? Protein labeled S35 and second is DNA labeled P32. First is protein label and second is DNA label. S35 and P32. Got it? Yes. Further we are going on. DNA packaging in prokaryotics. What is this? Nucleus is not well developed. In whom? In prokaryotics. Nucleus किसमें well developed नहीं रहता? किसमें नहीं रहता? प्रोकैरियोटिक्स में। सेकेंड पॉइंट इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है किसमें? न्यूक्लियोइड में। गॉट इट? यस। एंड थर्ड पॉइंट इज अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं रहता, वो अब्सेंट रहता है। गॉट इट? यस। We are going to learn something more about DNA packaging. What is it? First, in DNA packaging, all characters of body is stored in DNA. हमने पहले देखा कि हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर रहती है? डीएनए में। और एंड ऑल कैरेक्टर्स ऑफ बॉडी इज स्टोर इन डीएनए। गॉट इट?
सेकेंड पॉइंट इट इज़ न्यूक्लिक एसिड, यस ये भी हमने देखा. एंड थर्ड इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स डीएनए. एंड फोर्थ इज ये क्या है? सुपर मॉलिक्यूल है. नेक्स्ट पॉइंट इट इज डबल हेलिकल इन शेप. हम सबको पता है डीएनए कैसे दिखता है. डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल रहता है. कैसे रहता है? डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल रहता है, हम सबको पता है. गॉट इट. एंड नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. क्या? जो ये एक सेगमेंट है किसका? डीएनए का. ये एक सेगमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं जीन. गॉट इट. यस. नेक्स्ट इज पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल. Packaging of DNA is more complex in eukaryotic cell as compared prokaryotic. क्या कहा इन्होंने? मतलब यूकैरियोटिक में पैकेजिंग करना हमने पहले देखा पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक. अभी क्या है? यूकैरियोटिक. ये क्या कह रहे हैं? मतलब प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा यूकैरियोटिक क्या है? कॉम्प्लेक्स है. गॉट इट. यस. What is meaning of eukaryotic cell? ये क्या है? ये वेल डेवलप है. जो कि प्रोकैरियोटिक क्या था? वो नॉट वेल डेवलप था, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था. और यहाँ पे यूकैरियोटिक क्या है? वो वेल डेवलप है. और ये न्यूक्लियस है, और इसके पास क्या रहता है? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसमें. और उस प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? Absence of nucleus and nuclear membrane. And in eukaryotic there is a presence of nucleus and presence of nuclear membrane. Got it? Yes. This is IMP point which I have written as a note. DNA packaging in eukaryotic is related to histone and non-histone. We all know from 9th standard we are listening histone, non-histone, protein and this all things. What is histone? In histone there are two subpoints which are mainly, first is lysine and second is origin. What is first? First is lysine and second is origin. And in non-histone, the non-histone protein, which means protein means chain of amino acids bonded with peptide bond. Now you are going to ask me what is peptide bond and what is amino acid. So see here, I have mentioned here diagram also. I have mentioned one cyclic chain form, not cyclic chain form. I have mentioned here, जहाँ पे मैंने दिखाया आपको ये जो चेन का ये जो है ना, ये जो चेन है ना, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. और ये जो समझ लेते हैं ये कार्बन, हम लोग कैसे केमिस्ट्री में कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, ये वैसे ही स्ट्रक्चर है. सिर्फ मैंने राउंड फिगर में आपको ये एक्सप्लेन किया है. नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड इन दिस. ये क्या है? ये है अमाइनो एसिड. इन्होंने क्या किया? प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड विथ पेप्टाइड बॉन्ड. ये क्या है? एक चेन है जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है. और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोटीन. क्या कहते हैं? प्रोटीन. And next point is, this is also very important point, DNA is double helical structure. Yes, we all know this point. DNA क्या है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. ऐसा एक स्ट्रक्चर है DNA जो कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. DNA क्या रहता है? DNA नेगेटिवली चार्ज रहता है. गॉट इट? यस. थैंक यू.